All right. Am I clearly audible and visible to you all? Hello, a very good morning. I'm very good, Bafa. How are you? Okay. So today we have to do movement and locomotion. So are we ready? I'm doing okay. Sorry for the sudden change of time. I had to take the little one to the doctors. Everybody's falling sick. But तुम लोग बीमार नहीं पड़ना भाई. It is very important for you people to keep very well. है ना, अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखना. ठंडा पानी नहीं पीना, आइसक्रीम मत खाना बहुत ज्यादा देर के लिए एसी में भी मत सोना, बाहर का खाना मत खाना. Very important to keep good health. This is the last 30 days. You're supposed to take very good care of yourself. Yes, Mukesh. So far. All right. चलिए जी, तो स्टार्ट करें मूवमेंट एंड लोकोमोशन. आपको बता दूं, इसमें हमने मेजरली दो चीजों को कवर करना है. वी हैव टू कवर मसल्स and we have to cover bones, and both muscles and bones are dash in origin. They originate from which layers of your embryo? Can anybody tell me? Tick 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Yes, please. They are dash in origin, both bones and muscles. Very good, Zina. They are mesodermal in origin. From which dermal layer do we get bones as well as muscles? From the mesoderm. Again, both these bones and muscles, they provide a framework to the body. They provide us the skeletal framework to the body, which helps us to show movement and locomotion. Difference between movement and locomotion is like डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस. हाँ, सिमिलर जैसा फिजिक्स में होता है कि द टोटल डिस्टेंस कवर्ड, है ना, एंड जस्ट अ चेंज इन पोजीशन. तो वो डिस्प्लेसमेंट जैसी चीज जो होती है वो आपकी मूवमेंट होती है. दैट इट कैन अकर एट अ पॉइंट आल्सो. इट नॉट नेसेसरीली नीड्स अ चेंज इन इट्स ओरिजिनल पोजीशन. आप एक जगह से दूसरी जगह पर जब मूव करते हो, देयर इज सम डिस्टेंस व्हिच इज ट्रैवल्ड. That's locomotion. But जब आप खड़े खड़े अपना हाथ हिला रहे हो, that's just movement. So one small difference between movement and locomotion, and it is said that either movement or locomotion cannot be brought about by the help of the two, that is bones and muscles. दोनों ही हमें equally चाहिए अपनी movement या फिर locomotion करने के लिए, क्योंकि bone हमें framework देगा, but muscle हमें वो कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी देगी जिसकी वजह से मूवमेंट पॉसिबल हो पाएगी. हम बोलते हैं दैट टू फीचर्स व्हिच आर कॉमन अमंगस्ट योर मसल्स एंड योर न्यूरॉन्स, जैसा हमने ईसीजी में भी पढ़ा था, दैट बोथ आर डैश एंड डैश. कैन एनीबडी टेल मी बोथ आर डैश एंड डैश? टिक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Very good morning, Vivek. How are you? Yes, please. कि मसल भी ये प्रॉपर्टी शो करता है, न्यूरॉन भी ये प्रॉपर्टी शो करता है, तभी मसल को भी एक्साइट करना पड़ता है, न्यूरॉन को भी एक्साइट करना पड़ता है. दे आर एक्साइटेबल, दे आर कंडक्टेबल, दे आर कंड्यूसिबल, दे आर एक्साइटेबल. वो कंडक्शन भी करते हैं अपने थ्रू उस मैसेज की, और उनको बाहर से पहले एक्साइट भी करना पड़ता है ताकि वो अपनी एक्टिविटी परफॉर्म कर सके. एंड
बिसाइड्स दीज मसल्स हमारी बॉडी में मूवमेंट और भी स्ट्रक्चर्स प्रोड्यूस करते हैं. कैन यू नेम एनी अदर स्ट्रक्चर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट इन आवर बॉडी? टिक टिक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. That's perfectly okay, Kingsman. There was a slight change in the schedule because I have an appointment in the evening, which got confirmed late in the night. So earlier plan was to take at 4:30 only, but because of the change in the timing of the thing, I thought it's best class cancel now. Class हो जरूर चाहे time ऊपर नीचे हो जाए. Very good. Cilia. हमारी body में what do we have? We have cilia, and that ciliated epithelium in our body is present in two locations. Can anybody tell me the two locations where the cilia are present in our body? Tick tick 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Very good, Wafa. The trachea has pseudostratified ciliated columnar epithelium and fallopian tube, which has ciliated epithelium for movement of the gametes to facilitate fertilization. ये तो हमारी बॉडी की बात हो गई. If we talk of other animals, है ना, because जब हमने excretion किया था तो हमने देखा था कि और एनिमल्स के मोड ऑफ एक्सक्रीशन क्या है. जब सर्कुलेशन किया था तो देखा था कि कौन कौन किस तरीके का ब्लड रखता है. तो जब हम मूवमेंट इन लोकोमोशन कर रहे हैं तो भी हम देखेंगे कि जो मूवमेंट डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स प्रोड्यूस करते हैं वो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में क्या है. जैसे कि टेंटिकल्स किस तरीके के ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होते हैं एंड दे बिलोंग टू व्हिच फाइलम? क्विकली आंसर मी. टिक टिक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. हाँ जी. कैन एनीबॉडी टेल मी कि ये टेंटिकल्स किस तरीके के ऑर्गेनिज्म में देखे जाते हैं और वो क्या करने में हेल्प करते हैं, प्लस वो कौन से फाइलम को बिलोंग करते हैं? Hydra, they belong to Coelenterata, and these tentacles are responsible for movement as well as they are responsible for predation and protection. वो अपने आप को बचाते भी है. ऐसे डिफेंस मैकेनिज्म होता है because they have special stinging cells called nidoblast cells. Wonderful. इसी तरीके से अमीबॉइड मूवमेंट जो आप बोल रहे हो, सूडोपोडिया, they help in movement. Then this movement is seen in rhizopods, sarcodina, your protozoans. What about movement that are brought about by the help of flagella? हमारे पास फ्लैजुलर मूवमेंट्स भी होते हैं आपके प्रोकैरियोटिक सेल में, आपके प्रोटिस्ट के अंदर, आपके डायनोफ्लैजिलेट्स में. फ्लैजुला मूवमेंट एंड लोकोमोशन करने में हेल्प करते हैं, राइट? कैन यू नेम एनी स्ट्रक्चर? जैसे फ्लैजुला एक प्रोटिस्ट के पास है, सीलिया भी एक प्रोटिस्ट के पास होता है. वो कौन सा प्रोटिस्ट है जिसकी बॉडी इज कवर्ड ओवरऑल बाय सीलिया? टिक टिक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Paramecium is the organism जिसकी body is covered by cilia. So all these structures are mentioned in your first page कि paramecium किससे locomotion show करता है, hydra किससे locomotion show करता है, cilia, flagella, tentacles, these are different structures found in different organism for movement. अगर हम एक cell level पर बात करें तो सेल के अंदर, एक इंडिविजुअल सेल के अंदर अगर मूवमेंट करनी हो तो वो कौन सी मूवमेंट है which helps us to show इंट्रासेल्युलर मूवमेंट? इंट्रासेल्युलर, ये तो इंटरसेल्युलर भी हो सकती है ना, ये आउटसाइड द सेल भी हो सकती है. इंट्रासेल्युलर मूवमेंट के लिए क्या मैकेनिज्म होता है? टिक टिक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Putting it in other words, हम बोलते हैं कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में सिंपल फॉर्म ऑफ मूवमेंट को क्या बोलते हैं? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में इंट्रासेल्युलर मूवमेंट्स कैसे होती है? शुभ, आई डोंट थिंक आई will be able to help you on this, darling. So sorry. And very good, Pari. Cytoplasmic streaming.
The streaming of the protoplasm is a simple type of movement which is going to help me in the intracellular movement. ठीक है, जब भी चेंज ऑफ प्लेस हो तो उसको लोकोमोशन बोलते हैं, चेंज इन पोजीशन को हम मूवमेंट बोलते हैं. बोथ मूवमेंट एंड लोकोमोशन are facilitated in our body by muscles and bone. The two may be linked by stating that all locomotion are movements, but all movements are not locomotion. Star question mark. मैं हर बार लिखती हूँ, ट्रू फॉल्स में आ सकता है, असर्शन रीजन में आ सकता है. That all locomotion are movements, but all movements are not locomotion. Methods of locomotion performed by animals can be for different in different habitats, demand or the situation. आपको उससे बचने के लिए, खाने के लिए, शेल्टर के लिए, अलग अलग पर्पसेस के लिए मूवमेंट करनी पड़ सकती है with the help of different structures. There are certain specialized cells in our bodies वो बोलते हैं जो कि amoeboid movement शो करते हैं या जो कि सूडोफोडिया फॉर्म करके स्ट्रीमिंग ऑफ साइटोप्लाज्म करते हैं जैसे कि अमीबा में होती है. और कुछ हमारे पास साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स भी होते हैं जो मूवमेंट शो करने में हेल्प करते हैं. वो कौन से स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं जो अमीबॉइड मूवमेंट करते हैं, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग शो करते हैं, जो डायापेडिसिस भी शो कर सकते हैं? दे आर टिक टिक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. विवेक, जितना टाइम में हर रोज क्लास खत्म होती है उतने टाइम में आज कुछ डेफिनेट नहीं है. The WBC is like macrophages and leukocytes, or you can say monocytes, which are leukocytes. Another thing that you need to know with respect to your muscles and bones is कि muscle एक tissue भी है, bone एक tissue भी है, and those tissues organize in a specialized manner to act as an organ. Now, what is the organization of a muscle? What is the organization of a bone tissue that starts acting as an organ? हम पढ़ते हैं bone एक tissue है. Bone is a specialized connective tissue. हम पढ़ते हैं muscle एक tissue है. Skeletal muscle, smooth muscle, cardiac muscle एक tissue है. वो एक organ भी है. So what is the organization of muscle as an organ? What is the organization of a bone as an organ? If I ask you, तो एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं सिंपल सा. ठीक है, कि यहाँ पे बोन की एक कवरिंग है, एक थिक प्लेट लाइक बोनी टिश्यू है, एक कैविटीज वाला बोनी टिश्यू है, एंड देन एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी है. सेम चीज यहाँ अदर साइड पे रिपीट होती है. This is the organization of a bone as an organ. Okay. Will you be able to label all the parts if I give them A, B, C, D? Okay. Let's give the outer dotted line A. Can anybody identify what is A? Tick tick 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ये A क्या है? Anybody starts with the letter P. I don't think the voice is cracking, darling. It's perfectly fine. No. Outermost covering of the bone को हम क्या बोलते हैं, जिसको हमने dotted line में ड्रॉ किया है? Organization of a bone as an organ. Nothing but periosteum. Very good, Himanshi. इसको और कुछ नहीं, पेरियोस्टियम बोलते हैं. म्यूरियम वर्ड इज फॉर मसल बेटा, रादर हम मायोसियम या मायोम बोलते हैं. ठीक है, दिस इज पेरियोस्टियम. व्हाट इज दिस कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर? द सॉलिड हार्ड प्लेट लाइक बोनी टिश्यू. बी is nothing but compact bone. Compact bone
Especially in case of mammals, humans, we have Haversian system. कौन बताएगा मुझे? Two Haversian canals are connected to each other by a horizontal canal known as dash. Tick tick 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. एक कॉम्पैक्ट बोन में हैवर्शियन कैनाल्स होते हैं, बहुत सारे हैवर्शियन कैनाल्स होते हैं जो जुड़कर हैवर्शियन सिस्टम बनाते हैं. What is a horizontal connection between the two Haversian canals known as? No, warrior. Canaliculi is the connection between two osteocytes. I'm talking about the horizontal canal which is present between two Haversian canals. Wrong, wrong, wrong. Shekhar Vijay Kishan. Perfect answer, Faiza. Volkmann's canal. The Haversian system has various vertical Haversian canals that are connected to each other with the help of horizontal Volkmann canal. Wonderful. Canaliculi is a connection between the two osteocytes. Osteocytes which are present in the cavity between the two concentric ossified matrix, that is lamella के बीच में cavity होती है. वो cavity के अंदर आपके osteocytes होते हैं. उस cavity को हम क्या बोलते हैं? The cavity which contains osteocytes, the cavity which is the area between the two concentric lamellae, उसके अंदर आपके osteocytes होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? ये एक लैमिले है, ये एक लैमिले है, ये एक लैमिले है. तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे बीच में कैविटी है. इस कैविटी को हम क्या बोलते हैं जिसमें ऑस्टियोसाइट्स प्रेजेंट है? वेरी गुड, वी कॉल इट लैक्यूने. सो दीज आर ऑल. तो इस लैक्यूने के अंदर आपके बोन सेल्स प्रेजेंट होते हैं. And the connection between the bone cells, one to the other, this is called canaliculi. And ये जो पिंक कलर के आपके कंसेंट्रिक सर्कल्स है, ये और कुछ नहीं है बट ऑसिफाइड मैट्रिक्स है जिसको हम लैमेला बोलते हैं या लैमेले बोलते हैं. बिल्कुल. लैक्यूने इज इक्वल टू कैविटी, एम्प्टी स्पेस बिटवीन लैमेले. याद रहेगा सबको. आप ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ बोन एज अ बोनी टिश्यू एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ बोन एज एन ऑर्गन, कि उसके पास एक पेरियोस्टियम होता है, एक कॉम्पैक्ट बोन होती है, एक स्पॉन्जी बोन होती है एंड सेंटर में एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है. ये फ्लूइड फिल्ड कैविटी को हम क्या बोलते हैं? व्हाट इज दिस फ्लूइड फिल्ड कैविटी कॉल्ड? टिक टिक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ओके, लेट मी चेक. शमसुद्दीन जी, यहाँ तो एनसीईआरटी बिल्कुल ठीक आ रही है बेटा. It's the marrow cavity which is known as medullary cavity, which contains nothing but bone marrow. The red bone marrow or the yellow bone marrow. ठीक है. Organization of bone as an organ. Likewise, you have organization of a muscle as an organ. Huh? How is muscle organized into an organ? It also has certain fibers which join together to form a bundle. The bundles join together along with your, other blood vessels and tissues. What is that organization? What are the coverings? Can anybody tell me? Okay, let me show you an image. Hopefully you will be able to relate to it.
Can you appreciate this image? जो आपको ये एक छोटा सा रेड ब्लू दिख रहा है, this is nothing but actin and myosin, and there's so many red blue arranged parallel to each other in one myofibril. ये एक myofibril है. ऐसे बहुत सारे myofibrils प्रेजेंट होते हैं in one muscle fiber. In one muscle fiber. ये जो जाली जाली सा दिख रहा है ये और कुछ नहीं बट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है. Yes, and this endoplasmic reticulum covers all the myofibrils which are present in one muscle fiber that is covered by a covering which is called endomysium. And this one muscle fiber along with many other muscle fibers forms a bundle which is known as fascicule. Can you see? And each fascicule is covered by a covering called, कौन बताएगा? Tick 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ये fascicule की covering को हम क्या बोलते हैं? Very good वफा. ये fascicule की covering को हम पेरीमाइसियम बोलते हैं. And जब बहुत सारे fascicules join करते हैं along with blood vessels. Okay, see this image now. This is a myofibril which contains actin and myosin. Many myofibrils join to form one muscle fiber which is multinucleated skeletal muscle fiber that is covered by endomysium. Many endomysium along with the muscle fibers join with blood vessel, nerve, artery to form a bundle called fascicule that is covered by perimysium. This is called a fascicule which is covered by perimysium. And many bundles together, they join to form an organ called muscle whose external covering is called epimysium. And the muscle is joined to the bone with the help of a connective tissue called tendon. And all these muscle fibers are stuck together with the help of a thick connective tissue sheet which is called deep fascia. What your NCERT writes. Very important to understand the organization of muscle. So muscle एक organ भी है, muscle एक tissue भी है. आपको differentiate करना आना चाहिए. Bone tissue एक specialized connective tissue है जो कि एक hard connective tissue है जिसका जो matrix है वो calcified है in the form of lamellae. And ऐसी bony tissue इकट्ठा होके along with covering, along with bone marrow एक बोन ऑर्गन बनाता है. लाइकवाइज मसल फाइबर एक सिंगल मसल सेल जब जुड़ते हैं तो मसल टिश्यू बनाते हैं, बंडल बनाते हैं, फैसिक्यूल बनाते हैं. फैसिक्यूल अलोंग विद ब्लड वेसल्स, नर्व्स, आर्टरीज एंड अदर स्ट्रक्चर्स with coverings, deep fascia, they form an organ called muscle. ठीक है, याद रहेगा. मसल एज ए टिश्यू एज एन ऑर्गन, बोन एज ए टिश्यू एज एन ऑर्गन. कोई कंफ्यूजन? चले आगे. Now, when we have to bring about this movement with the help of muscle in our body, we need to know about the different type of muscle. हमें मालूम है कि हमारे पास स्मूथ मसल है, स्केलेटल मसल है, कार्डियक मसल है. कार्डियक मसल हार्ट में होती है. स्मूथ मसल सारे इनवॉलंटरी ऑर्गन्स में होती है जैसे कि यूरिनरी ब्लैडर, जैसे कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, जैसे कि आई. ये मसल्स हमारे कंट्रोल में नहीं है. जो स्केलेटल मसल्स होती है जो बोन्स के साथ अटैच्ड होती है जिनको हम खुद से मूव कर सकते हैं वो हमारे कंट्रोल में है. उनको हम स्केलेटल मसल्स बोलते हैं जो कि लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होती है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं. ऑल दीज मसल्स, हाँ, all these muscles made up about 40 to 50% weight of the body. Very very important. एक नॉर्मल इंडिविजुअल में 40 से 50% वेट उसकी मसल का होना चाहिए. जब हम BMI कराते हैं, है ना, और देखते हैं आपकी बॉडी में कितना फैट और कितना मसल है, तो आपका मसल मास ज्यादा होना चाहिए फैट मास से. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इट शुड मेक अप अबाउट 40 to 50% of your body. And the three properties which each muscle tissue or as an organ shows is
your excitability, your contractibility and extensibility, star question mark, which provide the elastic property, special property to muscle for contraction and relaxation to bring about the movement. हम बोलते हैं कि ये जो skeletal स्मूथ या कार्डियक है, ये इनकी किस बेसिस के ऊपर हम क्लासिफिकेशन करते हैं? कैन एनीबडी टेल मी ऑन व्हाट बेसिस आर दी स्मूथ स्केलेटल और कार्डियक मसल्स क्लासिफाइड? देयर आर 4 क्राइटेरिया, rather 3 नहीं बता दो, on the basis of which they are classified. 3 criteria on the basis of which the muscles in our body are classified, or animal tissue muscles are classified into smooth, skeletal or cardiac. Tick tick 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. देखने में कैसी दिखती है, स्ट्राइटेड है या नहीं है, तो अपीयरेंस, ठीक है. वॉलंटरी है या इनवॉलंटरी है, फंक्शन, एक्शन, नेचर ऑफ रेगुलेशन, और कहां पर पाई जाती है. आपकी बोन के साथ अटैच पाई जाती है तो स्केलेटल, आपके इंटरनल ऑर्गन्स के अंदर पाई जाती है तो विसरल, आपके हार्ट में पाई जाती है तो कार्डियक. So their location, their appearance and their nature of regulation makes the criteria for classification of muscles in our body. Very, 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 very important. Star question mark. क्या criteria है for classification? We know skeletal muscle multinucleated होती है, voluntary होती है, बोन्स के साथ अटैच्ड होती है. विसरल मसल्स आपकी स्मूथ मसल्स है, इनवॉलंटरी है, स्पिंडल शेप्ड होती है, या हम बोल सकते हैं कि वो फ्यूजिफॉर्म शेप्ड होती है. उसके अंदर सिर्फ एक्टिन मायोफाइब्रिल्स होते हैं और वो हमारे सारे इंटरनल ऑर्गन्स में पाई जाती है, ठीक है. जैसे कि यूरिनरी ब्लैडर, जैसे कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, जैसे कि लंग्स के साथ एसोसिएटेड जितनी भी मसल्स है, ये सब हमारी विसरल मसल्स है, नॉन स्ट्राइएटेड मसल्स है, ठीक है. कार्डियक मसल्स हमें मालूम है वो ऑटोरिकमिन होती है, वो ब्रांच्ड होती हैं, दे आर कनेक्टेड विद ईच अदर. उनके ब्रांचेस विद द हेल्प ऑफ सर्टेन डेस्मोसोम कनेक्शंस नोन एज intercalated discs. And what is the nature of striation in cardiac muscle? Striated, non-striated. They are faintly striated. Cardiac muscles are faintly striated. वो ऑटोरिथमिक जरूर होती है बट उनमें स्ट्राइएशंस देखी जाती है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. Again, it shows the cross section of a skeletal muscle, its organization, and it tells us about कि जब हमारे पास एक skeletal muscle के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियाई होते हैं, this multi-nucleated condition is known as dash. कोई मुझे बता सकता है ये multi-nucleated condition को हम क्या बोलते हैं? टिक टिक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. The muscle fiber is a syncytium. Syncytium means multi-nucleated, more than one nucleus. Skeletal muscle के पास एक से ज्यादा न्यूक्लियस होता है, ठीक है. एंड इस स्केलेटल मसल की मेम्ब्रेन को हम सार्कोलेमा बोलते हैं. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं. इसकी जो यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है which is formed by the myofibrils is known as dash. Membrane, sarcolemma, endoplasmic reticulum, sarcoplasmic reticulum, and the basic unit of contraction in a skeletal muscle cell is known as dash, जो कि उनके myofibrils का बना होता है, जो कि एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन के बने होते हैं, which is basically the distance between the two consecutive Z lines. Very good. It's called the sarcomere. Very very important. Sarcomere क्या है? Unit of contraction है. कहाँ से कहाँ तक extend करते हैं? दो Z lines के बीच का. ये Z line कहाँ होती है? कि आपके मायोफाइब्रिल में होती है. ये मायोफाइब्रिल किसका बना होता है? ये आपके प्रोटीन्स का बना होता है. स्केलेटल मसल में दो प्रोटीन्स होते हैं,
एक एक्टिन, दूसरा मायोसिन. Let's look at the organization. Yeah, here it is. Can you appreciate कि हमारा एक मायोफाइब्रिल है, ये एक मायोफाइब्रिल जिसके अंदर थिक फिलामेंट भी है और थिन फिलामेंट भी है. This is a thick filament which is made up of which protein? जल्दी से बता दो. टिक टिक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ये जो थिक फिलामेंट है ये कौन से प्रोटीन का बना होता है? वंडरफुल, इट इज मेड अप ऑफ मायोसिन. और ये जो थिन फिलामेंट है किसका बना होता है? ऑब्वियसली दूसरा एक्टिन. एंड ये थिक एंड थिन फिलामेंट्स इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं that they overlap each other in a certain zone. आप देख लो ये एक दूसरे को इतने एरिया में ओवरलैप कर रहे हैं. ये पैरेलली अरेंज्ड है और ओवरलैपिंग तरीके से अरेंज्ड है. ये एक्टिन के थिन स्ट्रैंड्स है. Now look at this. Now what happens when the nerve excites the muscle? It's excitable. It's extensible. And it's conducting. तो जब भी मैसेज आता है आपकी मसल के पास तो आपकी मसल का ये जो मायोफाइब्रिल है इसके जो ये प्रोटीन्स है एक्टिन एंड मायोसिन दे आर contractible, they are excitable, and when they are excited, when they are activated, they show contraction such that they shorten or they slide over each other. They contract or the muscle shows contraction as these myofibrils shorten, they contract in a manner that they shorten their length or they slide over each other. Tick tick 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो ना आपका आई बैंड छोटा होता है ना आपका ए बैंड में से बेसिकली वो स्लाइड ओवर ईच अदर करते हैं. दे डोंट शॉर्टन इन लेंथ. ठीक है, वो जोन भले ही छोटी बड़ी होती है पर आपके प्रोटीन फाइबर्स एक्टिन और मायोसिन छोटे बड़े नहीं होते. दे स्लाइड ओवर ईच अदर एंड दिस ओनली स्लाइडिंग mechanism that brings about contraction or shortening of the muscle is known as sliding filament theory. To understand sliding filament theory, we need to understand the organization of our muscle. इसीलिए डायग्राम दिखाया कि आपका जो मसल फाइबर है उसके अंदर आपके एक्टिन और
आपके मायोसिन किस तरीके से अरेंज्ड है. This is my myosin, this is my actin. They are arranged in an overlapping manner. They are arranged in an overlapping manner such that the purple ones are myosin, the green ones are actin. You see, when they slide over each other, none is shortening. कोई छोटा नहीं हो रहा, किसी की लेंथ छोटी नहीं हो रही, बस जो बैंड्स वो बना रहे हैं उनकी लेंथ शॉर्ट हो रही है. Now let's look it in an initial stage. Wait, let me show it to you. If I appreciate it in this stage, तो आप देखें can you see in this stage मेरे पास जो ग्रीन कलर के फाइबर्स है those are actin. My green color fibers are actin. These are actin. एंड जहां पर सिर्फ ग्रीन कलर फाइबर्स है उस बैंड को मैं लाइट बैंड या आई बैंड बोल रही हूँ. नाउ यू सी, जहां पर मेरे पास सिर्फ ग्रीन है, ओनली ग्रीन, उसको मैं आई बैंड बोल रही हूँ. जहां पर ग्रीन पर्पल के साथ ओवरलैप्ड है या जहां पर सिर्फ पर्पल है, उस जोन को, उस बैंड को मैं ए बैंड बोल रही हूँ. कि यहाँ पे ग्रीन भी है, यहाँ पे पर्पल भी है, यहाँ पे एक्टिन भी है, यहाँ पे मायोसिन भी है. इसमें भी दो एरियाज है, एक जहाँ पे एक्टिन ओवरलैप कर रहा है मायोसिन को और एक जहाँ पे एक्टिन ओवरलैप नहीं कर रहा है मायोसिन को. स्टार क्वेश्चन मार्क. व्हाट इज एच जोन? H zone is that area of the A band, thick band, myosin wala, where the myosin is not overlapped by actin. बात समझ में आती है? I repeat, I band क्या है? जहां पे सिर्फ एक्टिन है. A band क्या है? जहां पे मायोसिन है और एक्टिन भी है. उस A band में जहां जहां एक्टिन आपके मायोसिन को ओवरलैप कर रहा है वो बहुत थिक नजर आता है, पर जहां ए बैंड में एक्टिन मायोसिन को ओवरलैप नहीं कर रहा वो उस डार्क बैंड में एक छोटी सी लाइट जोन नजर आती है जिसको हम एच जोन बोलते हैं, हेंसेंस जोन बोलते हैं, where there is no actin overlap in myosin in A band. So I've got two bands, I band and A band. A band एक डार्क बैंड है जिसमें एक लाइट जोन है, एच जोन. वैसे ही आई बैंड एक लाइट बैंड है, एक्टिन का है, जिसमें एक डार्क लाइन आती है, एक इमेजिनरी डार्क लाइन आती है जिसको हम बोलते हैं जेड लाइन. कैन यू अप्रिशिएट? एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव जेड लाइन is known as a sarcomere. बिल्कुल. अब जब भी स्लाइडिंग होगी, देखो जैसे जैसे हमारा एक्टिन मायोसिन के ऊपर स्लाइड कर रहा है आपकी एच जोन शॉर्ट हो रही है. कैन यू सी व्हाट इज शॉर्टिंग? द एच जोन इज शॉर्टनिंग and the sarcomere length is reducing. तो जोन शॉर्टन होती है बट आपके फाइब्रिल्स शॉर्टन नहीं होते, एक्टिन शॉर्ट नहीं होता, मायोसिन शॉर्ट नहीं होता. अंडरस्टूड? अब क्योंकि आपकी दो जेड लाइंस पास में आ रही है तो आपका आई बैंड का जो मेजरमेंट है वो भी शॉर्ट होता है. देखो आई बैंड शॉर्ट हो रहा है.
Can you appreciate the I band shortening? और कौन शॉर्टन हो रहा है? आपकी एच जोन शॉर्टन हो रही है. और कौन शॉर्टन हो रहा है? आपका सार्कोमियर शॉर्टन हो रहा है. बट कोई भी प्रोटीन फाइबर शॉर्ट नहीं हो रहा. इट्स जस्ट द जोन, इट्स द एरिया which is decreasing, but the length of the fibrils remain the same. They just slide pass over each other. So what remains same? I छोटा हो रहा है, H छोटा हो रहा है, सार्कोमियर छोटा हो रहा है. कौन है झीट जो जैसा है वो वैसा ही रह रहा है? A band remains unchanged. वो जैसा था वो वैसा ही रह रहा है. Z तो एक लाइन है बेटा. Z लाइन टू Z लाइन सार्कोमियर छोटा होता है. अभी ये चीज क्लियर है कि कोई फाइब्रिल अपनी लेंथ शॉर्ट नहीं करता. इट्स जस्ट द स्लाइडिंग ऑफ एक्टिन ओवर द मायोसिन. कौन स्लाइड कर रहा है? थिन वाला स्लाइड कर रहा है थिक वाले के ऊपर, जिसकी वजह से बैंड्स शॉर्टन हो रहे हैं. Now we have to know about these thin and thick filaments also. कि मायोसिन किसका बना है, ये एक्टिन किसका बना है. हाँ, so can you tell me, अगर हम बोले कि मायोसिन के स्ट्रक्चर में अगर हम एक मायोसिन प्रोटीन को स्टडी कर रहे हैं या उसके एक फाइबर को स्टडी कर रहे हैं, तो वो किस कंपोनेंट्स का बना हुआ है? एनीबॉडी? टिक टिक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. The structure of the contractile proteins. These are polymerized protein. ये कैसे प्रोटीन्स है? ये polymerized proteins है. एंड उन पॉलीमर्स में जो मोनोमेरिक यूनिट्स हैं उनको हम मीरोमायोसिन्स बोलते हैं, जो कि एक थिक फिलामेंट को बनाते हैं. और हर मीरोमायोसिन के दो कंपोनेंट्स हैं. एक हेड है, एक शॉर्ट आर्म है और एक टेल है. तो हम बनाते हैं एक हेड है, एक शॉर्ट आर्म है और एक टेल है. ठीक है. और जो हेड है वो हेवी मीरोमायोसिन का बना होता है. हेड. जो शॉर्ट आर्म है और जो टेल है, the later is made up of light meromycin. The head is made up of heavy meromycin. The short arm and the tail are made up of light meromycin. I'm sorry. The former and the latter. The heavy meromycin, the head and the short arm, project outwards at a regular distance at an angle from each other and form the cross arm. And this structure, this angle forms the cross arm. Star question mark. कि कौन है जो ये cross arm बनाता है? ये जो आपका एंगल है जिसपे ये प्रोजेक्ट करता है, उससे ये क्रॉस आर्म बनाता है. And this globular head has an active ATPase enzyme and a site for binding to the ATP with active site for actin. अगर हम इसका एक डायग्राम देखें, let me show it to you. With the ATP and the active binding site. All right.
Diagram which shows both the areas. Easy. Can you appreciate the diagram, each one of you? कि दो पॉलीपेप्टाइड चेन है, एक दूसरे में इंटरमिंगल्ड है, एंड दोनों के पास एक हेड है, एक शॉर्ट आर्म है और एक टेल है. हेड, शॉर्ट आर्म और टेल. हेड शॉर्ट आर्म जो हम बोलते हैं, जो आपका हेवी पोर्शन है, short arm which projects the head at an angle forms the cross arm. Head which have a actin binding site, जो ऊपर टिप पे है वो actin binding site है, जो साइड में है वो ATP binding site है, और हमारे पास एक ATPase जहाँ पे वो ATP को हाइड्रोलाइज करते हैं, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं मायोसिन हेड का ATPase, जहाँ पे वो ATP को हाइड्रोलाइज करके उससे एनर्जी लेते हैं. अब क्वेश्चन ये आते हैं कि इनको एटीपी को हाइड्रोलाइज करने की क्या जरूरत है, उससे एनर्जी लेने की क्या जरूरत है. जब ये एटीपी को हाइड्रोलाइज करके उससे एनर्जी लेते हैं, तब उनके पास कैपेसिटी आती है कि वो जंप कर एक्टिन से चिपक जाए और एक ब्रिज बनाए, जिसको हम बोलते हैं क्रॉस ब्रिज. Can you appreciate this image? That the cross bridge is formed by the myosin head. जब वो एटीपी से एनर्जी हाइड्रोलाइज करके एक्टिन के साथ चिपक जाते हैं. So the cross bridge is formed by the head, the heavy neuromyosin component of myosin. Is this thing understood to all? Structure of myosin. Shall we move to structure of actin? क्या क्या स्ट्रक्चर आते हैं हेवी न्यूरोमायोसिन में? आपके पास हेड और शॉर्ट आर्म हेवी कंपोनेंट है, आपका टेल लाइट कंपोनेंट है, ठीक है. आपके पास जहां पे क्रॉस आर्म होती है वहां पे कुछ लाइट चेन्स पाई जाती है, बट हम उसको हेवी न्यूरोमायोसिन का कंपोनेंट मानते हैं. Light neuromyosin occurs in the tail region of the myosin, and these two polypeptide chains, they intermingle with each other, and the heads project at an angle to form the cross bridges with the actin. Now when we look at the structure of actin, चलो जी फटाफट से एक्टिन का स्ट्रक्चर देखते हैं. बेटा मैंने कल स्पेशली ग्रुप में मैसेज भिजवाया था कि I would be slightly unavailable at 4:30. So please let's do the class at 10:30 in the morning, so that class miss नहीं होना चाहिए. I did not want that हमारा class miss हो जाए, फिर हम एक chapter पीछे हो जाते हैं. We have to be with the flow and we have to maintain कि नहीं हमको ये हमारा टॉपिक इतने टाइम में फिनिश करना ही है, नहीं तो रिविजन लैग कर जाएगा, है ना. आई एम वेरी सॉरी दैट यू गॉट टू नो अ लिटिल लेट, बट अभी भी हमने सिर्फ मसल का ही कर रहे हैं, अभी तो हमारा पूरा बोन बाकी है. सो डोंट वरी, लेट्स डू इट. All right. Can you appreciate this structure? Can you see the purple gems like structure?
दिस इज नथिंग बट ग्लोब्यूलर एक्टिन, इसको हम जी एक्टिन बोलते हैं. दिस वन पर्पल डॉट or a ball is known as a G actin. When many G actin join, globular actin, globular protein join, they form a filament, they form a thread, which I call the filamentous actin or F actin. And ऐसे दो एक्टिन एक दूसरे में ऐसे coiled होते हैं. अब वो coiling तो खुल जाएगी, तो उस coiling को हम बांध के रखते हैं with a blue color thread, which you can see here, that is called tropomyosin. अब बांधने के लिए जब हमने उसको टाई किया तो वो टाई हमारा इतना अच्छा हुआ नहीं, तो हमने उसको रबर बैंड से और सिक्योर कर दिया. So that rubber band which secures the binding of F actin and tropomyosin is nothing but troponin. And troponin आप देखोगे ये रेड कलर के तीन बॉल्स जो है, जो कि तीन चीजों से बाइंड करने की कैपेसिटी रखते हैं. हाँ, कैन एनीबडी टेल मी ट्रोपोनिन के पास तीन साइट्स होती हैं जो तीन चीजों से बाइंड करने की कैपेसिटी रखते हैं. वो तीन चीजें क्या है जिससे आपका ट्रोपोनिन बाइंड कर सकता है? एनीबडी? टिक टिक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. कौन बताएगा? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ. It can bind with calcium. It can bind with और जल्दी बताओ. Tropomyosin. And जिसको हम बोलते हैं ट्रोपोनिन सी, जो कैल्शियम के साथ बाइंड करेगा. ट्रोपोनिन टी जो ट्रोपोमायोसिन के साथ बाइंड करेगा. और ट्रोपोनिन आई वो किसके साथ बाइंड करता है? Can you see this image? I C T. Troponin T binds with the tropomyosin. Troponin C binds with the calcium, and troponin I, it masks the active binding site. You know, it masks the binding site of actin with myosin. Very very important. कौन किससे जुड़ता है? क्लियर है? याद रहेगा हमेशा कि आपका जो ट्रोपोनिन है उसके तीन कंपोनेंट्स हैं. इट्स अ ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स. ट्रोपोनिन आई, ट्रोपोनिन सी, ट्रोपोनिन टी. ठीक है. ट्रोपोनिन सी कैल्शियम से बाइंड करेगा, ट्रोपोनिन टी ट्रोपोमायोसिन से बाइंड करेगा, ट्रोपोनिन आई ये किससे बाइंड करेगा? ये जो आपकी एक्टिव बाइंडिंग साइट है ये उसको मास्क करता है. सी. जब ट्रोपोनिन सी के पास कोई कैल्शियम नहीं होता उसकी शेप ऐसी होती है. जैसे ही कैल्शियम आ जाता है उसकी शेप ऐसी आ जाती है और ये तीनों स्ट्रेट लाइन हो जाते हैं और अनमास्किंग हो जाती है ऑफ द एक्टिव साइट. This is what happens when the calcium comes. There is a change in the structure of the troponin and there is unmasking of the site of binding of actin and myosin. Clear है बेटा? Let me show it to you. All right. Now, can you appreciate these two diagrams? यहाँ पे आपकी एक्टिव साइट
मास्ड है, यहाँ पे आपकी एक्टिव साइट अनमास्ड है. What is the reason for the unmasking of the active site? Because now the troponin C is bound to the calcium. And when it is bound to the calcium, it is going to unmask, show a change and unmask the active binding site. Is this thing clear? This is a very important topic for everyone to understand. That's why I am going a little slow. इस पे बहुत क्वेश्चन आते हैं. क्रॉस ब्रिज कौन बनाता है, कैल्शियम किससे बाइंड करता है, क्या चेंजेस आते हैं, ठीक है. देन इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड योर स्लाइडिंग थ्योरी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन. यस, तुमको आता है तो तुमको स्लो लग रहा है, जिसको नहीं आता वो बोल रहा है मैम एक बार और बता दो. So there's the difference. Clear है? Structure of actin, structure of myosin, binding of actin and myosin, formation of cross bridges. अभी हमारे लिए स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी समझना बहुत आसान है. क्या अब हमें मालूम है कि एक्टिन मायोसिन की पोजीशन क्या है, हमें मालूम है कि मायोसिन एटीपी पकड़ेगा तो जंप करेगा, क्रॉस ब्रिज बनाएगा. बट सिर्फ एटीपी से काम नहीं चलेगा, जब तक कैल्शियम नहीं होगा तब तक अनमास्किंग नहीं होगी. तो हमें एटीपी भी चाहिए, हमें कैल्शियम भी चाहिए, हमें दोनों चीजें चाहिए. चलो तुम ही बताओ शुभो अंजलि, ये कैल्शियम कौन लेकर आता है मसल के पास? टिक टिक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. संजीव, क्रॉस ब्रिज इज फॉर्म बाय द हेड ऑफ मायोसिन. जब उसके पास एनर्जी आती है, जब वो एटीपी से एनर्जी ले लेता है, बस वो क्रॉस ब्रिज बना कैसे पाता है? जब मायोसिन कूद के एक्टिन पे चिपक जाता है. अब चिपकेगा तब जब उसको उसकी पकड़ने की जगह मिलेगी. अब पकड़ने की जगह तो मास्क कर रखी है ट्रोपोनिन ने. जब तक वो अनमास्क नहीं होगी तब तक वो चिपक नहीं सकता. और अनमास्क कौन करेगा? कैल्शियम. तो हमें कैल्शियम चाहिए कि पहले अनमास्किंग हो, फिर मायोसिन कूदकर उसके ऊपर अपना क्रॉस ब्रिज बना सकता है. वेरी गुड. द सोर्स ऑफ कैल्शियम इन द मसल इज नन अदर देन द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ द मसल. और जैसे ही कैल्शियम आता है, अनमास्किंग होती है, मायोसिन के पास एटीपी आता है, वो कूद के ऊपर क्रॉस ब्रिज बना लेता है. दिस इज व्हाट इज हैपनिंग हियर. सी, कि जब मेरे पास एटीपी आएगा तो मायोसिन क्या करेगा? उस एटीपी से बाइंड करेगा और बाइंड करने के बाद वो क्रॉस ब्रिज बनाएगा. एंड क्रॉस ब्रिज बनाने के बाद क्या होगा? आपकी स्लाइडिंग होगी, बिकॉज वो इनर्शिया ऑफ मोशन पे है. वो एक्टिन क्या करेगा? उसको स्लाइड कर देगा मायोसिन की, तुम मेरे पास आ, ठीक है. एंड व्हेन एक्टिन स्लाइड्स ओवर मायोसिन, देयर इज शॉर्टनिंग ऑफ एच बैंड, देयर इज शॉर्टनिंग ऑफ I band, there is shortening of sarcomere. And जैसे ही नया एटीपी आता है, मायोसिन को लगता है छोड़ो, एक्टिन को छोड़ो, नया एटीपी आया उसको पकड़ो, तो एक्टिन का क्रॉस ब्रिज छोड़ देता है. As there is arrival of new ATP, जैसे ही नया एटीपी आता है, there is breaking of cross bridge. आप यहाँ पे लिख सकते हो arrival of new ATP leads to breaking of the cross bridge, and this breaking of the cross bridge leads to relaxation of the muscle. तो अगर आपको मसल को रिलैक्स करना है, अगर आपको कॉन्ट्रैक्शन को छोड़कर एक बार रिलैक्सेशन की तरफ पे जाना है, तो आपको क्या चाहिए? यू नीड अ न्यू एटीपी मॉलिक्यूल. एंड व्हेन दिस न्यू एटीपी मॉलिक्यूल इज नॉट जनरेटेड at the time of the death of an individual, then which condition is arised? उस condition को हम क्या बोलते हैं? कि muscle is in a prolonged contracted state because of no arrival of new ATP. When a person dies, there is no arrival of a new ATP and the muscle remains in the contracted situation only. मुट्ठी खोलने की कोशिश करोगे तो भी मुट्ठी नहीं खुलेगी in a dead individual. Why?
because the muscle is in a contracted state. It has not relaxed because of the lack of the ATP, and this condition is known as rigor mortis. इस condition को हम क्या बोलते हैं? Rigor mortis. Very 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 important. Star question mark. याद रहेगा? चले आगे. ऑलराइट. अगर इसी में एक क्वेश्चन पूछ ले, अगर इसी में एक क्वेश्चन पूछ ले कि बताओ when is that the myosin slides actin over it? When is the myosin slides actin over it? On arrival of ATP, on arrival of calcium, on forming of actin myosin bridge, or post detachment of actin myosin bridge? Tick tick 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. It's when there is formation of actin myosin bridge. Post में तो वो break हो गया ना. Very good. मुकेश, power stroke as such हम ये बोलते हैं कि whenever the energy is adapted from the ATP molecule, there is a rotation, है ना. जैसे ही एकदम से कूद के वो बनाता है, it's in the inertia of energy and it pulls the actin towards it. उसको हम power stroke बोलते हैं. ठीक है. अच्छा, लास्ट एंड फाइनल बिफोर वी मूव टू द मसल से बोन के ऊपर एक मसल कंपोनेंट था, एक बोन कंपोनेंट है जो हमें पढ़ना है. मसल कंपोनेंट भी टुक 1 आवर, विल गिव 1 आवर टू द बोन कंपोनेंट. सो मसल कंपोनेंट में एक छोटा सा डिफरेंस है जो हमें पढ़ना है ऑफ रेड मसल एंड व्हाइट मसल. ठीक है. अब फटाफट से क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में इसको हम करते हैं. क्विक रैपिड फायर. टेल मी which one has a higher number of mitochondria, red muscle or white muscle? Tick tick 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Which muscle has a higher component of mitochondria? Red के पास ज्यादा होता है या white के पास ज्यादा होता है? Mitochondria का काम होता है ATP बनाना. ATP से क्या होगा? एनर्जी ज्यादा होगी. एनर्जी ज्यादा से क्या होगी? कंट्रैक्शन ज्यादा होगी. तो किसके पास ये माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होता है? क्यों? Because they have to use a large amount of oxygen because they have to contract for a longer time. ठीक है. एंड क्योंकि उनके पास माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होता है तो वो ज्यादा एनर्जी बनाते हैं बाय ज्यादा ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, बाय ज्यादा कंजम्पशन ऑफ ऑक्सीजन. तो उनको ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए एंड दे हैव oxygen binding protein. Which is that oxygen binding protein which is present more in red muscles because they produce more energy by oxidation of food with the help of more mitochondria. That protein, that red color protein that actually provides the red color to the red muscle is none other than myoglobin. याद रहेगा पक्का कि मायोग्लोबिन लाल रंग प्रोवाइड करता है. लाल मसल के पास होता है. एम फॉर मायोग्लोबिन, एम फॉर माइटोकॉन्ड्रिया. वो ज्यादा ऑक्सीजन यूज करता है, उसके पास ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होता है, उसके पास ज्यादा एनर्जी होती है, वो ज्यादा देर तक कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है. ठीक, ज्यादा देर तक. हाँ, तो जब हमें ज्यादा काम करना होता है, ज्यादा देर तक काम करना होता है, तो हमें ज्यादा एनर्जी चाहिए. उसके लिए हम रेड मसल फाइबर्स यूज करते हैं. जो आपके व्हाइट मसल फाइबर्स होते हैं, ठीक है, वो हंटर की तरह होते हैं. विप फ्लैश मूवमेंट करते हैं फटाफट वाली, जैसे ब्लिंकिंग ऑफ आई. इट्स अ व्हाइट मसल. ठीक है. शॉर्ट क्विक कॉन्ट्रैक्शन.
ये व्हाइट कलर के इसलिए होते हैं क्योंकि इनके पास मायोग्लोबिन नहीं होता, इनके पास ऑक्सीजन ज्यादा नहीं होता, इनके पास माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा नहीं होता, इनके पास एक सेल ऑर्गेनेली ज्यादा होता है जो इनको क्विक कॉन्ट्रैक्शन करने में हेल्प करता है. व्हिच इज दैट? टिक टिक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Very good. The calcium source which is endoplasmic reticulum. उनको ज्यादा कैल्शियम चाहिए तो इसलिए उनके पास ज्यादा endoplasmic reticulum होता है. All right. Here is where we finish the muscle component. ठीक है. All the three types of muscles, smooth, skeletal, cardiac. All the components of the skeletal muscle contraction, the A band, the I band, the H zone, the Z line, the contraction, the sliding filament theory, the myosin, the actin, the calcium binding, and red muscle and white muscle. Now moving to bones. So when we talk of bones, the total number of bones in a body is 206. It's divided into an axial and an appendicular skeleton. जो center of the body में वो axial है, जो side में है वो appendicular है. ठीक है, side माने यहाँ forelimbs and hand limbs. Can anybody tell me जो हमारे girdles है, जो हमारे forelimb को axial skeleton से connect कर रहे हैं, जो hind limb को हमारे axial skeleton से connect कर रहे हैं, girdles are a part of which skeletal system? Axial or appendicular? जल्दी से बता दो. टिक टिक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. जल्दी जल्दी जल्दी. वो किसके पार्ट होते हैं? एक्सियल के कि अपेंडिकुलर के? वेरी गुड. दे आर द पार्ट ऑफ द अपेंडिकुलर स्केलेटन. ठीक है. एक्सियल स्केलेटन में टोटल कितनी बोन्स होती है? हमने बोला हमारी बॉडी में टोटल 206 होती है. एक्सियल में टोटल कितनी होती है? बिल्कुल प्रसाद जी, करोगे तो जरूर सॉल्व होंगे. The axial skeleton has about 80 bones. We need to know the breakup of these 80 bones. ये हमारी खोपड़ी है, skull. इसमें कुछ bones है. ये हमारी गर्दन है, इसमें कुछ bones है. ठीक है. ये हमारा chest region है, abdomen region है, इसमें कुछ bones है. ठीक है. ये पूरा जो हमारा धड़ और सर है, इसमें जितने भी bones है, ये सब axial skeleton का हिस्सा है. ठीक है. आपका स्कल, आपका बैकबोन, आपका नेक, आपका चेस्ट, आपका abdomen, all these bones are a part of your axial skeleton which constitute to be about 80 bones in total. And जब हम स्कल की बोन्स की बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि उसमें आपका क्रेनियम आ जाता है. ठीक है, जो सर को ऊपर नीचे से कवर करता है. आपके ईयर ऑसिकल्स आ जाते हैं, आपका नेक, आपका हायोइड आ जाता है, आपका रिब केज आ जाता है. ठीक है. एंड आपका पेल्विस आ जाता है. तो व्हाट पेल्विस, तो एक तरीके से आप कह सकते हो कि वो गर्डल के उसमें आ जाएगा. तो व्हाट रिब्स तक are the bone numbers which we need to remember? What are the number of bones which are present in your face? Facial bones का number. जल्दी जल्दी से करते हैं. Everybody, number of bones which are present in your face. Let me give you an option. Is it 24? Is it 14? Is it 4? Or is it 16? 24, 14, 4 or 16? Tick tick 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Facial bones. Very good. We have 14 facial bones, जिसमें आपका ये वाले bones आ जाते हैं, zygomatic bone, maxilla, mandible, nasal. हाँ, ये सब आपके facial bones है, which are about 14 in number. आपके cranium में 8 bones होती हैं, frontal, parietal, temporal, occipital, sphenoid और ethmoid. ठीक है, जो आपके ब्रेन को ऊपर और नीचे से कवर करके रखती है. तो योर 8 cranial bones, 22 facial, 14 facial bones sum up to be 22 bones जो हम मेजर आपके स्कल के अंदर स्टडी करते हैं. ठीक है. इसके अलावा यू हैव ईयर ऑसिकल्स एंड यू हैव योर हायोइड, है ना. तो वी ऐड देम आल्सो. 6 + 1
दैट इज अराउंड 7. सो 29 बोन्स तो हम यहीं पे पढ़ लेते हैं. ठीक. Coming forward to the bones which are present in your rib cage and your vertebral column, उनके कुछ कुछ फीचर्स हैं जो आपको मालूम होने चाहिए. You have one sternum, ठीक है. You have 12 pair of ribs and you have dash number of bones in your vertebral column. Rib cage की मैंने तुम्हें बता दी. You have one sternum, ठीक है, and you have 12 pair of ribs. How about the number of bones which are present in your vertebral column in an adult? In an adult, tick tick 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. It's 26. Please 31, 33 ये वाला आंसर नहीं देना. ठीक है. हमारे स्पाइनल नर्व्स और वर्टिब्रल बोन्स इन एडल्ट, बच्चे में हम कह सकते हैं कि हाँ 33 होते हैं, बाद में वो फ्यूज हो जाते हैं. ठीक है. हमारे सैक्रम रीजन में, हमारे लंबर रीजन में बोन्स फ्यूजन शो करते हैं, हमारे कॉकेजियल रीजन में बोन्स फ्यूजन शो करते हैं एंड दे बिकम सिंगल बोन्स. तो वो फ्यूजन के बाद हमारे पास जो मूवेबल बोन्स है वो 26 मूवेबल बोन्स है इन द बॉडी ऑफ एन एडल्ट. ठीक है. So when we talk of bones or number of bones in a body, you can always create a flow chart कि कितने नंबर ऑफ बोन्स आपको आपकी बॉडी में मिलते हैं, स्पेशली एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर. ठीक है. 80 प्लस हमारी कितनी हो गई, 206 में से 80 माइनस कर दोगे तो आपकी 126 जो हम बोलते हैं. लेट्स शो यू. It's very easy to remember the number of bones with the help of flowcharts बेटा. कि आपके पास स्कल में कितनी है, आपके पास वर्टिब्रल कॉलम में कितनी है, आपके पास रिब में कितनी है, आपके पास स्टर्नम में कितनी है. These are the bones which are present in your axial skeleton. Likewise, you have the bones which are present in your appendicular skeleton as well. Let me give you the breakup of each. One second. Can you appreciate? The appendicular skeleton, each limb contains 30 bones. And if I look at forelimb, I have two forelimbs, I have two hind limbs. तो कितना हो गया? 2 forelimb, 2 hind limb, 30 each, 30 into 4, 120. तो यही हो गया. तो बची 6 bones. हाँ, वो 6 bones are divided into your pelvic girdle and your pectoral girdle. To let you know, आपके 3 हर साइड पे होते हैं. 2 pectoral girdle, 1 pelvic girdle, again 2 pectoral girdle, 1 pelvic girdle. तो 3 on each side, 3 2 से 6 bones आपके girdle bones होते हैं. 2 for pectoral girdle on each side, that is total 4, and 1 for pelvic girdle on each side, that's 2. So 4 plus 2, 6 girdle bones, 30 bones in each limb. And when we talk of 30 bones in each limb,
Then you have your upper arm, your forearm, your wrist, your palm, and your phalanges. Likewise, you have thigh, you have shank, you have ankle, you have foot, and you have phalanges. So this is the division of number of bones in your limbs. कोई मुझे फटाफट से, अगर मैं इसका एक फ्लो चार्ट तुमको दूं तो फिल करके बताएगा कि कौन सी बोन कहाँ पे आती है. रेडी? Okay, let's give it to you. Chalo. Can you appreciate the image? I'll share all these images with you as well. Number of bones that you can see in the arm, whether it's left or right. Your upper arm, humerus. Your lower arm, your radius ulna. Your wrist is your carpals. Number of carpals that you have, 8. Your palm, you have metacarpals. Number of metacarpals, 5. Your phalanges, 4 in each finger, 12. 2 in thumb, 14. Right? Coming to leg. Your upper thigh or thigh, you call it femur. Your shank or your leg, you call it tibia and fibula. Your ankle, or you can say the one which forms your wrist के जैसा. यहाँ पर कार्पल्स होते थे 8, यहाँ पे टार्सल्स होते 7. तो एक बोन कहाँ जाती है? One bone is what forms your knee bone, that is patella. And it's a very specific bone that is formed by ossification of tendons. Can you tell me which type of bones are formed by ossification of tendons? We call them dash type of bones. Tick tick 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ये बताना है जो अब आपके साथ क्वेश्चंस पूछूंगी. It's the sesamoid bone. Can you tell me what forms your heel? किसी को मालूम है आपकी heel कौन सी बोन बनाती है? आपकी heel या जिसको हम एड़ी बोलते हैं, which bone is responsible for formation of your heel? It's a part of your ankle, the 7 bones that forms the heel. Tick tick 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Anybody? जो आपके 7 टार्सल्स होते हैं उसमें से वो जो हील बोन है जो फुट बेसिकली एंकल बनाती है वो कौन सी है? ये पुराने पेपर्स में क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए पूछ लिया है. कैन यू अप्रिशिएट दिस? द calcaneum is the bone which forms the heel of the foot. Very important. Star question mark. याद रहेगा? Next, pelvic girdle and pectoral girdle. Can you name the bones of the pelvic and the pectoral girdle? Let's start with the pectoral girdle. What are the bones which are present in the pectoral girdle? Tick tick 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Can you name the cavity which is associated with the pectoral girdle bone? Tick tick 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. The cavity which is associated with the pectoral girdle.
जिसके अंदर आपका अपर आर्म या ह्यूमरस आके फिक्स होता है। Which cavity is it? Tick tick 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Can you appreciate the image? Very well done. It's known as the glenoid cavity. And अगर तुमसे पूछ लिया जाए कि अक्रोमियन प्रोसेस किस बोन की स्पेशलिटी है, तो अक्रोमियन प्रोसेस is the speciality of scapula, which is a part of your pectoral girdle. Clavicle and scapula, which are the two bones that form the part of the pectoral girdle. उसमें से आपका जो scapula, it associates or it articulates with humerus in its glenoid cavity. ऐसे ही जो आपका पेक्टोरल गर्डल है उसमें भी एक कैविटी है which associates with the femur. What is the name of that cavity? Tick tick 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. What is the name of the cavity which is present in the pelvic girdle? एक तो pelvic girdle की बोन को हम coxal bone बोलते हैं. That is formed by the fusion of three bones. It is formed by the fusion of three bones. That is ilium, ischium, pubis, where there is a cavity which is associated with the ischium. आप कह सकते हो, ठीक है? उस कैविटी को हम क्या बोलते हैं? उस कनेक्शन को, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं कि एक डिप्रेशन होता है, ऐसा डिप्रेशन जिसके अंदर आपकी फीमर फिक्स होती है. तो वो एक्चुअली कैविटी सी नहीं है, वो एक डिप्रेशन है जिसको हम एसिटाबुलम बोलते हैं, जिसके अंदर आपका फीमर ऐसे ऐसे घूमता है, ठीक है. और ये जो कैविटी है ये ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन है, जिसमें से आपकी फीमोरल आर्टरी, फीमोरल नर्व, सारे वेसल्स और सारे ट्यूब्स निकलते हैं, ठीक है, जिसके दब जाने से ठीक है हम फील करते हैं कि नहीं शियाटिक नर्व की प्रॉब्लम आ गई, लोगों को शियाटिका हो गया. उसका मतलब क्या होता है कि ये जो फोरामेन से वेसल्स निकल रही है वो दब रही है, ठीक. एसिटाबुलम इज द कनेक्शन व्हिच द फीमर फॉर्म्स विद योर पेल्विक बोन्स. इलियम, इस्चियम, प्यूबिस. क्वेश्चन आ जाता है इस्चियल स्पाइन, ट्यूब्रोसिटी. ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन किस में देखा जाता है? आपके पेल्विक गर्डल में. याद रहेगा. चले आगे. कौन सी इलियम है, कौन सी इस्चियम है, कौन सी प्यूबिस है, कौन एसिटाबुलम फॉर्म करता है? All right. Coming to the bones of the vertebral column now. So when I know all the bones, ठीक है, I need to know about two bones in specific. एक आपका वर्टिब्रल बोन और एक आपकी रिब केज के बोन के कुछ फीचर्स हैं जो हमें मालूम होने चाहिए. नंबर ऑफ वर्टिब्रल बोन्स, नंबर ऑफ रिब केज बोन्स. फीचर्स ऑफ वर्टिब्रल बोन्स, फीचर्स ऑफ रिब केज बोन्स, जिन पे मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं. Like which is your first cervical vertebra, which is your second cervical vertebra. How many vertebra columns do you have? We have 5 divisions: cervix, thoracic, lumbar, sacral, coccygeal. You tell me the number of bones which is present in each. Okay, let's start with cervix first. How many bones are present in the cervical region of the vertebral column? Tick tick 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. सर्वाइकल रीजन ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम कितने बोन्स होते हैं?
7 बोन्स होते हैं, 8 नर्व्स होती हैं, ठीक है। थोरैसिक रीजन हाउ मेनी बोन्स? जितने थोरैक्स में बोन्स होते हैं उतनी रिब्स होती है, 12। लंबर रीजन हाउ मेनी बोन्स? टिक टिक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वेरी गुड। L5 बोलते हैं हम। एंड हाउ अबाउट सैक्रम एंड कॉक्सियल? दे आर 1 1, बट हम बोलते हैं कि वो फ्यूज होके 1 1 बनते हैं, वो फ्यूज होके 1 1 बनते हैं। तो आइडियली वो कितने होते हैं, कोई मुझे बता सकता है? Ideally, sacrum was 5 fused to form 1. Coccygeal was 4 fused to form 1. एंड जिसको लंबर में कंफ्यूजन है, आप देख लो, ये आपकी लंबर स्पाइन होती है बेटा, L1 L2 L3 L4, ठीक है। इसके नीचे ये कॉक्सिक्स है, सैक्रम कॉक्सिक्स 1 2 3 4 फ्यूज होके 5 1 बन जाते हैं, सैक्रम एंड कॉक्सियल 1। एंड ये सारी जो हमारी सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर, ये जितनी भी हमारी वर्टिब्रल बोन्स है, इनके अपने अपने कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, ठीक है। अगर हम आपसे पूछें कि कौन सी ऐसी वर्टिब्रल बोन है, हाँ, जिसके पास एक बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक, हाँ, हार्ट शेप है, हार्ट शेप है, which of the 5 categories of vertebral bones has a characteristic heart shape? बताओ किसमें से हार्ट शेप नजर आ रही है? टिक टिक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। थोरैसिक के पास हार्ट शेप नजर आ रही है, तो वो थोरैसिक वर्टिब्रा हो गई। देखो हर किसी की शेप एक दूसरे से अलग है। Thoracic has a characteristic feature of a heart body of the vertebral bone. If I look at the cervical bone, they have a characteristic cavity on either side. उनके ट्रांसवर्स प्रोसेसेस में एक कैविटी होती है जो और किसी में भी नहीं है। आप देखोगे वो कैविटी जो इनके अंदर है, ना वो थोरैसिक में है, ना वो लंबर में है, ना वो सैक्रम में है, ना वो कॉक्सियल में है। दिख रहा है? So these are characteristic features of each bone which is present in your vertebral column. The first cervical vertebra, the second cervical vertebra, they join with each other to form a joint. ठीक है, जो कि बहुत पूछा जाता है, फर्स्ट और सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्रा के बीच में कौन सा जॉइंट है और वो हमें कौन सी मूवमेंट करने में हेल्प करता है? नॉडिंग मूवमेंट करने में हेल्प करता है या नो मूवमेंट करने में हेल्प करता है? टिक टिक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वो कौन सा जॉइंट है जो हमें नॉडिंग मूवमेंट करने में हेल्प करता है और वो कौन सा जॉइंट है जो हमें ऐसे ऐसे घूमने में मदद करता है? टिक टिक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। We have a pivot joint,
And which movement is facilitated at atlas and axis? It's the no movement. ये up and down movement is with the help of your skull. इसमें skull पूरा move कर रहा है ऊपर से नीचे. And if you look at the dynamics of this particular joint, let me show it to you. We call it the atlanto-occipital joint. तो इसमें आपका जो हेड है वो घूमता है और जो हेड फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा के साथ जो बोन आपका जॉइंट बनाता है वहां पे आपका फल्क्रम है. सो दिस इज हाउ इट मूव्स अप डाउन. द अटलांटो ऑक्सिपिटल जॉइंट. हमेशा याद रखना कि नो मूवमेंट किस पे है, वो ऐसे ऐसे घूम रही है. फर्स्ट एंड सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्रा. ठीक है. यस मूवमेंट किस पे है? हम बोलते ना किसी भी चीज में दिमाग लगाना पड़ता है. नहीं, कोई बोलेगा ये करना है, नहीं ये करना है, नहीं कहना बहुत आसान है. उसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, हेड की जरूरत नहीं है. तो उसमें हेड वाली बोन नहीं आएगी. नो में क्या आएगी? सिर्फ गर्दन हिलानी होती है, उसमें दिमाग नहीं लगता. ठीक है. दिमाग किस में लगता है? जिसमें यस करना होता है कि ये करना है कि नहीं करना. दिमाग का होता है सर में. तो सर में वो सर वाली बोन आएगी, ऑक्सिपिटल एंड द फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा दैट इज एटलस, जिसको हम अटलांटो ऑक्सिपिटल जॉइंट बोलते हैं. Is this thing clear to all? No atlas or axis? Yes, सर लगेगा उसमें. अटलांटो ऑक्सिपिटल joint. Clear है? Everyone, very important. So that's the pivot joint of your first and second cervical vertebra. ठीक है. And pivot joint is a synovial joint. A synovial joint which provides free movement. ठीक है. There are other joints which provide limited movement or no movement. Can you name the joint which provides limited movement? Tick tick 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. The joint which provides limited movement. Very good. It's the fibrocartilaginous joints which provide limited movement that are present between your vertebral bones. They are fibrocartilaginous joint. And जो बिल्कुल भी movement show नहीं करते हैं वो कौन से होते हैं? The ones which are present in your skull bones. The ones which are called sutures. उनको हम कौन से टाइप के जॉइंट्स बोलते हैं? These are white fibrous joints. बिल्कुल एक दूसरे से फ्यूज्ड. Which provide zero movement. So this is basically the functional classification of joints, जिसमें हम बोलते हैं कि on the basis of movement हम उनको classify कर रहे हैं. हाँ, ऐसे और भी criteria for classification होते हैं जिसमें हम सिर्फ फंक्शन नहीं देखते, उसके अंदर हम उसकी पोजीशन, उसकी फॉर्मेशन भी देखते हैं. ठीक है. एंड दिस वुड बी अ रियली गुड फ्लो चार्ट टू रिमेम्बर फॉर द एग्जाम्स कि फाइब्रस जॉइंट्स कौन से होते हैं? जो आपके सूचर्स होते हैं जिनमें कोई मूवमेंट नहीं होती, जहाँ पे आपका सिम्फाइसिस होता है, जैसे यहाँ पर दो बोन्स जुड़ रही है या पेल्विक में दो बोन्स जुड़ रही है. हाँ, वो आपकी कैसी है? वो कार्टिलेजिनस है जिसमें हमें थोड़ी सी रिलैक्स्ड मूवमेंट देखने को मिलती है. एंड साइनोवियल जिसमें हमें फ्री मूवमेंट देखने को मिलती है. सो
This is a structural classification of joints. When I say structural classification, I mean कि उनकी movement किस हिसाब से होती है, ठीक है. I have other classifications on the degree of movement, जिसको हम synarthrosis, amphiarthrosis या diarthrosis भी बोलते हैं. हम रीजन के बेसिस पे बोलते हैं कि स्कल टाइप, वर्टिब्रल टाइप या लिम्ब टाइप, या हम आर्टिकुलेशन की कौन सी किससे जुड़ रही है, एक ही बोन से जॉइंट आर्टिकुलेट कर रहे हैं, दो बोन से जॉइंट आर्टिकुलेट हो रहा है, तो उसको हम सिंपल, कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स जॉइंट भी बोलते हैं. कि कितने कितने जॉइंट्स मिल रहे हैं, कितनी कितनी बोन्स मिल रही है, कितने कितने एक्सिस है, ये भी एक तरीके की क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स होती है, व्हिच यू कैन सी हियर. कि स्ट्रक्चरल के अंदर फाइब्रस है, कार्टिलेजिनस है या साइनोवियल है. फंक्शनल के अंदर कि वो कितनी मूवमेंट शो कर रहा है, बहुत ही मूवेबल है, फ्रीली मूवेबल है या स्लाइटली मूवेबल है, जिसको हम नाम देते हैं सिनार्थ्रोसिस, एम्फियार्थ्रोसिस या डायआर्थ्रोसिस. रीजनल या फिर आर्टिकुलेशन की नंबर ऑफ बोन्स व्हिच आर आर्टिकुलेटिंग टू फॉर्म द जॉइंट. These are the type of joints. What we need to remember is the classification of the synovial joints. The different type of synovial joints that we have in our body and their examples. Where do you find them? Even more important, very 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 important, star question mark. आपसे पूछ लिया जाए ग्लाइडिंग जॉइंट आपको आपकी बॉडी में कहाँ देखने को मिलता है, तो कहाँ देखने को मिलता है? टिक टिक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Where do you see the gliding joint in your body? Where all can you see the gliding joint in your body? Specifically आपके कार्पल्स में, यहाँ पे आपको ग्लाइडिंग जॉइंट देखने को मिलता है. Where can you see the hinge joint in your body? Elbow, knee, ankle. These are hinge joints in the body. एक ही प्लेन में आपकी बोन मूव करती है. पाइवोट जॉइंट आपको कहाँ देखने को मिलता है? एटलस एंड एक्सिस, रेडियस एंड अल्ला. आपको कैसा जॉइंट देखने को मिल रहा है? पाइवोट जॉइंट. एलिप्सॉइडल जॉइंट आपको कहाँ देखने को मिलता है? इसको हम बोलते हैं कि इसके अंदर हमारे पास एक तरीके से गोल गोल घुमावदार मूवमेंट हो रही है. ऐसा ही सिमिलर एक सैडल जॉइंट भी होता है, जिसको हम थंब का जॉइंट बोलते हैं. मेटाकार्पल ऑफ थंब एंड कार्पल का जो बोन होता है, उसको हम सैडल जॉइंट बोलते हैं. एक ही जगह पाया जाता है, कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है. एंड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट आपका अपर, शोल्डर, हिप, ये आपकी कैसे जॉइंट्स है? ये आपकी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स है, ठीक है. याद रहेगा क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स. अगर मैं आपसे पूछूं द जॉइंट व्हिच इज फॉर्म्ड बाय रिब्स टू द कार्टिलेज एंड देन टू द स्टर्नम, ये कैसा जॉइंट है? टिक टिक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. जो आपकी रिब्स आपके स्टर्नम से जुड़ती है, ठीक है, तो दे आर जॉइंड विद द हेल्प ऑफ अ कोस्टल कार्टिलेज. व्हाट टाइप ऑफ जॉइंट इज दैट? Tick tick 1 2 3, I'm doing again, 4 5 6 7 8 9 10. दिखाऊं? Okay, let me show it to you. बोन्स तो जुड़ रही है, बोन्स तो आपस में आर्टिकुलेट भी कर रही है, और जब वो आर्टिकुलेट करती है तो वहां पे कार्टिलेज भी होता है. Okay, can you see? We have ribs, we have costal cartilage, and we have sternum. तो ये कौन सा जॉइंट हो जाएगा? कार्टिलेजिनस जॉइंट, फाइब्रो कार्टिलेजिनस जॉइंट, कि इसमें स्लाइट मूवमेंट पॉसिबल होती है आपकी रिब्स
बाहर भी चली जाती हैं, आपकी रिब्स अंदर भी आ जाती है, तो थोड़ी बहुत मूवेबल है। बेटा सैडल एक ही है, सिर्फ ग्लाइडिंग यहाँ होता है। ग्लाइडिंग दिखाऊं तुम्हें कैसे काम करता है? वेट, अभी दिखाती हूँ, पहले ये स्टडी कर लेते हैं। रिब केज के क्वेश्चंस बहुत आते हैं, आने चाहिए। ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब्स, vertebrochondral ribs, floating ribs. We must know the names of all these. Then we go to that question. We call it the cartilaginous joint, which allows limited movement. I won't call it the fibrocartilage. The cartilaginous joint, which allows limited movement. Okay? Which amongst them now, as you can see, is false ribs? Which amongst them, as you see now, are known as the false ribs? Tick, tick, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. जल्दी 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 जल्दी. The 8, the 9, the 10. Very good Anjali, very good Suraj. Sanjeev, please correct yourself. आपको ये देखना है कि जो आपकी डायरेक्टली कार्टिलेज से स्टर्नम पे कनेक्टेड है, देखो 1 भी स्टर्नम पे, 2 भी स्टर्नम पे, 3 भी स्टर्नम पे, 4 भी स्टर्नम पे, 5 भी स्टर्नम पे, 6 भी स्टर्नम पे, 7 भी स्टर्नम पे, ये सब स्टर्नम पे डायरेक्टली अटैच हो रही है और बैकबोन से तो अटैच्ड है ही, तो इनको हम बोलेंगे कि ये ट्रू रिब्स है, 1st to 7. आपकी 8वीं जो है वो कार्टिलेज ऑफ 7 को ज्वाइन कर रही है, 9वीं कार्टिलेज ऑफ 8 जो 7 को ज्वाइन कर रहा है, 10वीं भी कार्टिलेज जो कि 9 फिर 8 7 से ज्वाइन कर रहा है. सो दीज आर कॉल्ड फॉल्स रिब्स. एंड जो आगे कनेक्टेड है ही नहीं, है ना, जो आगे वेंट्रल पोर्शन में रिब्स कनेक्टेड है ही नहीं, ना कार्टिलेज से ना स्टर्नम से, उनको हम फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं. क्लियर है? और भी डेविल लगेगा अगर इसके ऊपर क्वेश्चन आ गया और तुमको आता नहीं होगा. अच्छा, इनमें से वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिब्स किसको बोलते हैं? नाम ही बता रहे हैं. Out of these three, true ribs, false ribs, floating ribs, vertebrochondral ribs word is used for which ones? Tick tick 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिब्स हम किसके लिए यूज करते हैं? नाम क्या बता रहे हैं? वर्टिब्रो माने वर्टिब्रल कॉलम, कॉन्ड्रल माने कार्टिलेज. तो जो वर्टिब्रल कॉलम से भी अटैच्ड है, जो कार्टिलेज से भी अटैच्ड है, आगे से वेंट्रली कार्टिलेज से अटैच्ड है, पोस्टीरियरली वर्टिब्रल कॉलम से अटैच्ड है, such bones are called vertebrochondral bones. इसका मतलब वो स्टर्नम से अटैच नहीं है. एंड ये vertebrochondral bones are your false ribs. 8th, 9th, 10th. एंड एज यू सेड, हमारा कार्टिलेज इज हाइलाइन कार्टिलेज, इसलिए हम जॉइंट को कार्टिलेजिनस जॉइंट बोलेंगे. एंड इन बोन्स के कितने आर्टिकुलेशन सर्फेसिस है? 2 आर्टिकुलेशन सर्फेसिस है, इसलिए हम इन्हें बाइसेफेलिक बोलते हैं. एक हमारा स्टर्नम से ज्वाइन करता है, दूसरा हमारा वर्टिब्रल कॉलम से ज्वाइन करता है. Is this thing clear, everyone?
the bone, the vertebral column, the axial, the appendicular skeleton, the number of bones in each, glenoid cavity, acetabulum, acromion process, very important. ये 3 नाम है आपके, ग्लिनॉइड कैविटी, अक्रोमियन प्रोसेस, एसिटाबुलम, जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं विद रिस्पेक्ट टू आर्टिकुलेशंस। ठीक है, ये जो एलिवेटेड रिज है जिसको आप साइन बोलते हो, ये किसमें पाया जाता है? दिस इज फाउंड इन स्कैपुला। क्लियर? स्कैपुला कहां से कहां तक एक्सटेंड करता है? इट एक्सटेंड्स फ्रॉम T2 टू T7। इतनी बड़ी ट्रायंगुलर बोन होती है। जॉइंट्स हम कर चुके हैं। लास्टली वी हैव टू लुक एट disorders of the muscular and the skeletal system. Disorders of the muscular and the skeletal system. एक तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, एक इन्फेक्टिव डिसऑर्डर है, एक हमारा ऐसा डिसऑर्डर है जो कि डेफिशिएंसी डिसऑर्डर है। ठीक है, एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। दे आर ऑल 5 टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर्स। इफ आई टॉक ऑफ गाउट, it's a metabolic disorder when your body forms a lot of uric acid and uric acid crystals are deposited in the joints leading to gout arthritis. हाँ, एक आपका ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसको हम रूमेटॉइड अर्थराइटिस बोलते हैं, जब आपका रूमेटॉइड फैक्टर, आप ही का बॉडी का इम्यून सिस्टम आप ही की बॉडी के बोन जॉइंट्स को डिस्ट्रॉय करने लग जाता है। ठीक है, ये भी एक तरीके का आर्थराइटिस होता है जिसको हम रूमेटॉइड अर्थराइटिस बोलते हैं। Another autoimmune disorder which is related to the muscles is myasthenia gravis, where your own body immune system starts degenerating the muscles and it leads to deterioration of the activity of the muscles. तो हम बोलते हैं basically the neuromuscular junction, जिससे मसल वीकनेस होने लग जाती है, मसल पैरालिसिस होने लग जाती है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए मस्कुलर डिस्ट्रॉफी और मायस्थीनिया ग्रेविस में क्या फर्क है, एक तो टारगेट साइट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होती है मायस्थीनिया ग्रेविस में और पैरालिसिस हो जाता है, वो फंक्शन नहीं करती है विद रिस्पेक्ट टू द न्यूरॉन। उसको क्या मैसेज दे रहा है? आपका मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में जो मसल डिटेरियोरेशन होती है उसमें मसल वीकनेस होती है, मसल मास का लॉस होता है। ठीक है, तो ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। टेटनाई is a deficiency disorder because of lack of calcium. They cannot be contraction, leads to numbness, spasm. तो वो टेटनाई कहलाता है। ऐसा ही एक टेटनस भी होता है। ठीक है, टेटनस which is caused by Clostridium tetani bacteria है ना, which is responsible for the locked jaw disease, जिसमें हम बोलते हैं कि आपकी एक तरीके से prolonged contraction of a muscle हो जाती है। That is also a disorder of the movement and locomotion system or muscular and skeletal system. Very correct. देखो, अगर आपको सिंपल भाषा में बताओ, स्पाज्म क्या चीज होती है? ठीक है, तो एक तरीके का अनकंफर्टेबल, आप वर्ड समझते हो, अनकंफर्टेबल फीलिंग, the uncomfortable feeling because of the twitching of the muscle. अगर आप बहुत ज्यादा ओवर एक्सर्ट भी कर लेते हो, ठीक है, और उस ओवर एक्सर्शन की वजह से आपकी मसल एक कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में रह रही है जो कि पेनफुल है, उसको हम स्पाज्म बोलते हैं। एक तरीके का इनवॉलंटरी फीचर होता है, जानबूझ के आप नहीं कर रहे हो, बट आपकी स्केलेटल मसल इनवॉलंटरीली एक कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट, एक स्टिफनेस फील कर रही है, उसको हम स्पाज्म बोलते हैं। कितनी बार ऐसा होता है, आप सुबह उठते हो ना, गर्दन एकदम अकड़ी होती है, यार गर्दन अकड़ी सी बड़ा दर्द कर रही है, हाँ, तो क्या है, वो अकड़ना, वो खिंचाव, वो कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट ऑफ द मसल की वजह से, जो तुम्हारी वजह से नहीं है, इनवॉलंटरी है, सडनली हो गया है, दैट इज कॉल्ड स्पाज्म। ठीक है, द अनकंफर्टेबल फीलिंग, the stiffness in the muscle that you feel because of involuntary contraction that is sudden with no particular reason, that's called spasm beta. ठीक है, on the other hand, हाँ, on the other hand, the tetani वाला जो आपका feeling है, हाँ,
The tetani is because of lack of calcium. अब आपकी बॉडी में कैल्शियम नहीं है, तो आपका जो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होना चाहिए, ठीक है, अब इसमें भी एक इनवॉलंटरी मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है. अब ये जो मसल कॉन्ट्रैक्शन है, ये आपके लैक ऑफ कैल्शियम की वजह से, इसका रीजन हमें मालूम है, ठीक है, ये इनवॉलंटरी है बट बिना किसी रीजन के नहीं है. तो ये स्ट्रेस वाला स्पाज्म नहीं है, ये बिना किसी रीजन वाला स्पाज्म नहीं है. इट हैज अ स्पेसिफिक रीजन दैट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कैल्शियम. हाँ, तो आपकी जो नर्व्स है वो ओवरली स्टिमुलेटेड हो जाती है और एक तरीके का क्रैम्प फील होता है, एक तरीके की कॉन्ट्रैक्शन फील होती है जिससे बंदा अपने कंट्रोल में नहीं रख सकता. उसको हम टेटनाई बोलते हैं, ठीक है. एंड आपको मालूम ही है कि पैराथायरॉइड ग्लैंड में जब वो कैल्शियम लेवल्स को मेंटेन नहीं कर पाता है तो टेटनाई की कंडीशन आती है. यूजुअली हाथों पैरों में फील होता है. So there is numbness around the mouth, there is cramp, and there is a paresthesia जिसको हम बोलते हैं numbness feeling in tetani. ठीक है, अब याद रहेगा. वाह 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 वाह, वेरी गुड अंजलि, नाइस वे टू रिमेम्बर. Sure, I'll take that as an advice, Suraj. I'm working on it. Any other doubts that you have that you want to clarify with respect to the muscular and the skeletal system? Joints में, bones में, muscle contraction में, muscle proteins में. ये वाली लाइन पे बहुत क्वेश्चन आता है. व्हाट एक्ट्स एज अ फल्क्रम? द जॉइंट एक्ट्स एज अ फल्क्रम. द फोर्स इज जनरेटेड बाय द मसल टू कैरी आउट द मूवमेंट थ्रू द जॉइंट्स. जो मैंने तुमको दिखाया भी था कि एफर्ट क्या होता है, फल्क्रम क्या होता है और लोड क्या होता है. ओके, ग्लाइडिंग एंड सैडल जॉइंट बताते हैं. गिव मी अ मिनट. Can you appreciate this? This is a gliding joint where one bone glides over the other. उनका सरफेस ऐसा है कि बस वो ऐसे ऐसे मूव करते हैं. दिस इज ग्लाइडिंग जॉइंट डार्लिंग, ठीक है. योर सैडल जॉइंट. सैडल समझते हो? घोड़े पे बैठे हो कभी? घोड़े की जो सीट होती है देखिए कभी? That is saddle joint. I had an image for it. Just trying to see where it went. Oh, give me a moment. तो जब आपका जो आर्टिकुलेशन सरफेस हो ना, वो घोड़े की सीट जैसा हो. कभी वैष्णो देवी गए हो, घोड़े पे बैठे हो, तो जैसा आपका कनेक्शन होता है ना, योर बम विद द सैडल ऑफ द हॉर्स इज एग्जैक्टली द सैडल जॉइंट. So it somewhat is appearing like this.
तो जब ये आप घोड़े पे बैठते हो, है ना, तो वो जो घोड़े की सीट होती है ऐसी, और आप उसमें टांगे खोल के बैठते हो ऐसे, है ना, दैट्स अ सैडल एंड दैट्स द सैडल जॉइंट. I think now you can relate to it. और फिर वो तुम्हें जगह जगह पे लगता है, और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता वो घोड़े पे बैठना. It's so uncomfortable, man. I don't know how horse riders even play polo on it. This is a saddle joint. अभी ठीक है? What is a saddle joint and what is a gliding joint? बिल्कुल आपको sliding filament theory clear कर देते हैं. I have a GIF for that also. Let me show it to you. All right, here we go. Can you appreciate this? हम बोलते क्या होता है जब नर्व इम्पल्स आता है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है एट द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, कैल्शियम रिलीज होता है फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बाइंड्स टू द एक्टिन troponin and unmask the site of the myosin binding to the actin. Meanwhile, myosin head binds with ATP, gets energy, jumps and binds to the actin, pulls it towards it, क्योंकि वो तो jumping mode में है ना, वो अपनी तरफ खींचता है actin को. So the actin slides over myosin and this forms a sliding filament theory. Is this thing clear? What forms a cross bridge between the actin and the myosin? The head of the myosin. See, this is a neuromuscular junction. Whenever there is an action potential generated, the endoplasmic reticulum releases the calcium, which leads to the contraction. Appreciate here. Let me increase its size for you. I hope if you can see it bigger and better. Can you? So ये जो contraction हो रही है, ये जो sliding हो रही है, it is because of the binding of the myosin to the actin. अभी ठीक है? Anything else that you want to know? अरे ऐसा वाला तो मुझे नहीं मालूम कि अपना ही गला दबा देते हैं. है, मुझे भी बता दो, मेरे भी कुछ दुश्मन है, ऐसे डिजीज कैसे किया जाता है, मैं वो, मेरा नाम भी नहीं आएगा, उनका गला भी दब जाएगा. वाह वाह. See, I band changes सूरज. I band shorten होता है, H zone shorten होती है, Z line sarcomere shorten होता है. It's just the A band जिसका thickness remains constant. Ritika, sesamoid bones are those bones which are formed by ossification of the tendons. Example, patella. अच्छा, मुझे नाम DM कर देना प्लीज. Okay, I so want to know it.
बुढ़ापे में काम आएगा. बहुत मजेदार है. चले. So on that note, we give it a wrap. So we are through with your movement and locomotion. I hope I was able to clear all your doubts, help you remember all the number of the bones, all the joints of the bones, all the muscles which are important, the cardiac, the smooth, the skeletal, their origin, their proteins, their organization, what shortens, what does not shorten, the neuromuscular junction. बिल्कुल, ये मुहावरा एकदम सटीक है इसके लिए. Thank you very much for joining. Tomorrow morning again, we'll have the question answer discussion for movement and locomotion. So see you then. Till then, take care. Bye-bye. Thank you so much for joining. Ta-da.